Good morning, dear students. Hope you all are well. So, students, as we all have completed till chapter 3rd, so today we are going to start with new chapter, that is chapter 4, Understanding Windows. So, students, let's begin with operating Windows. Children, who takes care of all the household job at your home? Yeah, that's our parents. Parents look after each and every work that which is related to our household because they run the house with system. They run the house systematically. Suppose your parents just go away for a few days, would you be able to manage the household work? No, it's not possible at all. Similarly, computer. Computer has a set of program which manage all the work which is done in the computer. That is called operating system. Windows is an operating system. Without it, we can't even start a computer. If you want to start a computer, Windows is very important. विंडोज़ नाम आते ही आपके दिमाग में एक इमेज फॉर्म हुई होगी, वो है इस विंडो की. नो, बट हमें इस विंडो के बारे में नहीं पढ़ना है. हमें पढ़ना है कंप्यूटर विंडो के बारे में, जो कि ये होता है. गॉट इट? ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स, वी कैन सी डिफरेंट प्रोग्राम्स. विलियम बिल एच गेट्स, ही इज अ फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन. He is the richest personality in the world. Now we will learn about features of Windows 7. Windows is very attractive. It has colorful pictures and themes. बहुत सारे pictures, themes से related होती हैं. Easy to operate होती हैं. और इसमें जो भी tools हम search करना चाहते हैं वो easily हम search कर सकते हैं. और एक साथ हम बहुत सारे programs को भी run कर सकते हैं. Got it? जब हम कंप्यूटर खोलते हैं तो विंडो अपने आप ऑटोमेटिकली खुल जाएगा. जो पहला स्क्रीन हमारे कंप्यूटर पे आता है उसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं. विंडो 10 लेटेस्ट वर्जन है विंडोज का. विच विंडो? विंडोज 10. गॉट इट? नाउ वी विल लर्न अबाउट आइकन्स. व्हाट आर आइकन्स? जो द स्मॉल लेवल्ड पिक्चर विच इज ऑन द डेस्कटॉप, लाइक माई कंप्यूटर here, touch paint is there, means all these programs are known as icons. Got it class? Now सपोज आप किचन में जब जाते हो तो आप देखते हो बहुत सारे बॉक्सेस रखे होते हैं, सॉल्ट का, शुगर का, टी लीव्स का, और सब पे लेबल लगा होता है कि हाँ ये बॉक्सेस हैं. वैसे ही सिमिलरली कंप्यूटर में होता है कि हम सारी चीज़ों पे नाम नीचे लिखा होता है. नाउ वी विल लर्न अबाउट विंडो टास्क बार. टास्क बार क्या होता है? ये जो हॉरिजॉन्टल बार है इसे हम विंडो के टास्क बार बोलते हैं. ये बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइडेड होता है. नाउ हम उस सेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं. सो पहला सेक्शन है स्टार्ट बटन. स्टार्ट बटन, इस बटन को स्टार्ट बटन बोलते हैं, जो कि लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है. इस बटन को क्लिक करते ये बॉक्स खुल जाएगा. इस बॉक्स के थ्रू वी वॉन्ट टू ओपन एनी प्रोग्राम, एनी फोल्डर, एनीथिंग, we can just search and open with the help of this box. Got it class? We can take help, support, whatever we want to do, we can search over here. If we want to shut down the computer, we can go for it. Now we will learn how to open. Directly we can open the, click the start button that is present on the keyboard. Got it? Now we will learn about the middle section. What is the middle section known as? See, it is also known as quick launch bar. The work which we do maximum time, that is already over here. We can easily click over here and we can open that particular program like Google Chrome or some video player. Got it class? Now the notification area. Notification area is for the getting the notification related to network connectivity. Network से connected है कि नहीं हमारा कंप्यूटर, about battery, about volume,
about and different many more things. We can get the notification over here about the Wi-Fi connections and many more things. Now the show desktop button is present on the extreme right of the taskbar, on the extreme right of the taskbar, to minimize the program which is going on. Got it? Now we will learn about moving the taskbar. We can move that taskbar wherever we want. Now we will learn. First we have to place the pointer on this blank area, and we have to hold by clicking the left mouse button, and we can move our taskbar anywhere we want. Suppose we want here, we here. Got it, class? Now suppose we want to lock the taskbar. How we will lock? We have to click on this blank area. We have to click the right click by the mouse, and we have to just click on the option lock the taskbar, and we can lock the taskbar over here. We can't move. Selecting and deselecting of icons. It's very simple, class. अगर किसी आइकन को हमें खोलना है तो अगर हम उस पर क्लिक करते हैं और किनारे किनारे हाईलाइटेड हो जाते हैं, वो सेलेक्ट होता है, और अगर हम क्लिक करते हैं, बाहर क्लिक होता है, अगर नहीं हाईलाइट होता है तो वो डीसेलेक्टेड हो जाता है. नाउ क्लास, सेलेक्टिंग एडजेसेंट एंड नॉन एडजेसेंट आइटम्स. एडजेसेंट मतलब जो साथ में बगल में हो, और नॉन एडजेसेंट जो साथ में ना हो. तो अब इसे सेलेक्ट करने का प्रोसेस क्या होता है? सो फर्स्ट वन इज़ फॉर सेलेक्टिंग द एडजेसेंट आइटम. फर्स्ट वन इज़ क्लिक ऑन द फर्स्ट आइटम टू बी सेलेक्टेड. मतलब लेफ़्ट क्लिक फ्रॉम द माउस. माउस से जब लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो वो आइटम सेलेक्ट हो जाती है. और दूसरा ऑप्शन क्या है इसका कि अगर शिफ्ट की से, अगर जो आइटम मान लो सेलेक्ट किया हुआ है, फर्स्ट आइटम सेलेक्ट किया हुआ है, शिफ्ट की दबाएंगे तो दूसरा 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 उसके बाद वाला आइटम सेलेक्ट होता जाएगा. या फिर तीसरा क्या है कि शिफ्ट की को रिलीज़ कर दिया जाए, कॉन्टीन्यूअस चला दिया जाए. फिर अब नॉन एडजेसेंट जो साथ में ना है उसको सेलेक्ट करने का क्या प्रोसेस है? पहला है होल्ड डाउन द कंट्रोल की से सेलेक्ट किया जा सकता है. फिर दूसरा क्या है कि क्लिक वन बाय वन ऑन ईच ऑफ द आइटम टू बी सेलेक्टेड. वन बाय वन क्लिक किया जाए जो आइटम्स को हमें सेलेक्ट करना है. गॉट इट? दिस इज़ फॉर द सेलेक्टिंग द आइकन्स ऑन विच इज़ प्रेजेंट ऑन द कंप्यूटर. जो भी कंप्यूटर पे आइकन्स प्रेजेंट होते हैं उसको सेलेक्ट करने के लिए जो एडजेसेंट आइटम है या नॉन एडजेसेंट है उसका ये प्रोसेस बताया गया है. गॉट इट क्लास? Now we will learn how to open particular program in our computer. Suppose we want to open Google Chrome. So what we have to do? We have to click either from the keyboard, that is enter key, or second option is to click from the mouse, that is double click from the left mouse button. Got it? Now we will learn how to arrange desktop items. So here we go. First we have to click on this blank area. We have to click that is right click. माउस से हम राइट क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स खुल जाएगा, ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा. तो इसमें हम ऑप्शन पे जाना है, व्यू ऑप्शन पे जाएंगे. वहाँ एक ऑप्शन आएगा ऑटो अरेंज आइकन. इस जैसे इस पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली कि जितने आइटम्स हैं वो एक प्रॉपर फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे. ठीक है? ये सारी चीज़ें किस लिए होती हैं? ताकि हमारा डेस्कटॉप बेटर दिखे, क्योंकि इसमें बहुत सारे आइकन्स होते हैं, कोई इधर आ गया कोई इधर आ गया. तो एक प्रॉपर लुक देने के लिए, नीट और टाइडी दिखने के लिए हमें इसको प्रॉपरली अरेंज करना होता है. गॉट इट? प्रॉपर अरेंजमेंट करने के बाद हम चाहेंगे कि हमारे जो आइकन्स हैं या तो किसी मतलब एक पर्टिकुलर वे में रहें, मतलब ताकि हमें ढूंढने में ज़्यादा आसान हो. जैसे कि उसको बोलते हैं शॉर्टिंग द आइकन, उसको मतलब शॉर्टेड करना, शॉर्ट बाय करना. तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? हम
वैसे ही राइट क्लिक करेंगे माउस पे, माउस से ब्लैंक, जहाँ पे ब्लैंक एरिया होता है डेस्कटॉप का, तो ये बॉक्स खुलेगा। इस बॉक्स में हम कहाँ जाएंगे, शॉर्ट बाई पे जाएंगे। वहाँ पे जब जब क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स खुलेगा। इस बॉक्स में हमको जिस फॉर्म में शॉर्ट करना है उस फॉर्म में, जैसे सपोज वी वांट टू अरेंज इट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, हम नेम पे क्लिक कर देंगे। गॉट इट क्लास? नाउ वी विल लर्न हाउ टू चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। मैनी टाइम्स हम चाहते हैं कि जो हमारा डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है उसमें हमारी फ़ोटो आ जाए या फिर कुछ सीनरी की फ़ोटो रहे। मतलब हम अगर डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, जैसे फ़ोन का बैकग्राउंड होता है वैसे डेस्कटॉप का भी अगर हम बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। सो पहला है कि हमें राइट क्लिक करना होगा माउस से, ठीक है। तो ये बॉक्स खुल के आएगा, ठीक। इस बॉक्स में हमें क्लिक करना है पर्सनलाइज पे। किस पे करना है क्लिक? पर्सनलाइज। गॉट इट? जैसे ही हम पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे ये बॉक्स खुल के सामने आएगा। इस बॉक्स में हमें जैसा भी पिक्चर मतलब सेलेक्ट करना है, कोई भी इसमें से जो भी ऑप्शंस हैं इसमें से जो भी सेलेक्ट करना है वो हम क्लिक कर सकते हैं। और जब हम क्लिक कर दें मतलब जो भी सेलेक्ट, मान ली इसे सेलेक्ट किया, इस वाले को, फर्स्ट वाले को सही, उसके बाद हमें सेलेक्ट करने के बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे ताकि वो चेंज अप्लाई हो जाए। गॉट इट क्लास? यहाँ पे दिया हुआ है कि हम टाइम भी सेट कर सकते हैं कि कितने मिनट तक ये रहे, ठीक है। अब बारी आती है स्क्रीन सेवर की। स्क्रीन सेवर होता क्या है? अक्सर हम मान लीजिए कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे होते हैं, सपोज वी आर मेकिंग सम फाइल, तो हम काम करते करते हम कुछ देर के लिए कुछ काम, हमें अपना कुछ काम याद आता है तो हम कंप्यूटर को ऐसे छोड़ देते हैं और हम वो काम करने चले जाते हैं। तो उतने टाइम तक कंप्यूटर पे एक पर्टिकुलर स्क्रीन आ जाती है, वो उसे स्क्रीन सेवर बोलते हैं। फिर जब हम वापस अगर या फिर कोई भी क्लिक करते हैं बटन कीबोर्ड से या फिर माउस को हल्का सा ड्रैग कर देते तो फिर वापस जिस स्क्रीन पे काम कर रहे थे वो स्क्रीन वापस खुल जाता है। तब तक के लिए जो स्क्रीन, जब हम काम नहीं कर रहे होते, जब कंप्यूटर पे जो स्क्रीन आती है उसको स्क्रीन सेवर बोलते हैं। गॉट इट क्लास? तो अब हम सीखेंगे ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। सो सेम प्रोसेस, राइट क्लिक करेंगे जब माउस से ब्लैंक एरिया में तो ये बॉक्स खुलेगा। इसमें हम पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद हम स्क्रीन सेवर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। स्क्रीन सेवर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद उसमें जो भी चॉइसेस हम चाहते हैं उस पर कर सकते हैं। सपोज़ हमें अपना टाइम सेट करना है कि अगर टाइम बढ़ाना चाहते हैं तो ऊपर इस वाले वेट के पास जो एरो है ऊपर करते जाएंगे, टाइम घटाना है तो यहाँ नीचे करेंगे, मिनट्स में दिया हुआ है, ठीक है। जो भी चेंजेस हम यहाँ पे से चेंज करते हैं उसके बाद हमें ओके क्लिक करना होता है ताकि वो उसे अप्लाई कर दे, ठीक है। नाउ जो माउस का पॉइंटर होता है क्लास, वो आपने ये नोटिस किया होगा कि वो टाइम टाइम पे अलग अलग शेप्स की तरह दिखता है। एक तो ये नॉर्मल शेप होता है, ये एरो वाला आप जानते ही होंगे, हमेशा स्क्रीन पे दिखता है। कभी कभी अक्सर हम कुछ क्लिक करते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम खोला तो अक्सर मैक्सिमम टाइम उसी पे होता है कि ये ऐसा बफरिंग वाला ये आता है। इसका मतलब क्या होता है? इट मीन दैट कंप्यूटर इज़ बिजी, कंप्यूटर खोल रहा है, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को खोल रहा है, हमें कुछ देर वेट करना पड़ेगा। गॉट इट? ये डबल हेडेड एरो क्या होता है? ये एरो अक्सर आपने देखा, ये अक्सर जो विंडो होता है उसको साइज़ चेंज करने के लिए होता है। ये अगर मान लीजिए कोई पिक्चर है उसको मूव करना है तो ये 4 हेडेड एरो होता है। आई बीम, ये आई बीम किस लिए होता है? ये ताकि जो भी टेक्स्ट, हमें अगर कुछ टेक्स्ट एंटर करना है, कुछ वर्ड, लेटर, सेंटेंस, टेक्स्ट एंटर करना है डॉक्यूमेंट में तो ये आई बीम ऑप्शन रहता है, ठीक है। ये मैक्सिमम एमएस वर्ड के पे काम करते हुए आपने देखा होगा कि कर्सर ऐसे रहता है, हम उसके आगे लिखते जाते हैं, ठीक है। ये वर्किंग इन द बैकग्राउंड, इट मीन्स दैट कंप्यूटर इज़ प्रोसेसिंग वाइल यू आर वर्किंग, ठीक है।
ये बैकग्राउंड में मतलब काम हो रहा है, इसके लिए ये ऑप्शन होता है, ठीक है। We have learned many things, like we have learned about minimize, maximize, maximizing the screen, selecting the icons, moving the taskbar, sorting the icons, changing the desktop background, माउस पॉइंटर का शेप भी पढ़ लिया। अब बारी आती है कि अब हम कंप्यूटर को बंद कैसे करेंगे। इट्स वेरी सिंपल क्लास। फर्स्ट स्टेप इज़ टू क्लिक ऑन दिस टिक, स्टार्ट बटन इसको बोलते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स खुल के आएगा। इसमें हम शट डाउन पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा, ठीक है। इट्स वेरी इजी टू शट डाउन द कंप्यूटर। गॉट इट क्लास? सो क्लास, I hope this chapter is clear to everyone. Thank you class. Have a nice day ahead.